क्लास 6 चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली mongoose। mongoose मतलब होता है नेवला। A farmer, his wife and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. One day, the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping, keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. You need not be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as a baby and they are the best of friends, you know. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. Blood, she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. You wicked animal! You have killed my baby! She screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake torn and bleeding. In a flash, she realized what had happened. She ran out looking for Mongoose. Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? She cried, touching the mongoose, who lay dead and still, unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went to feed him. A story from the पंचतंत्र। अभी हम इसका मीनिंग देखेंगे। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. Once a farmer, एक बार एक किसान, and his wife, उसकी wife, lived in a village, एक गांव में रहते थे, with their small son. एक बार एक किसान और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बच्चे के साथ। They loved him very much. वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। We must have a pet. हमारे पास एक पेट होना चाहिए। पेट मीन्स होता है पालतू जानवर। The farmer said to his wife one day. एक दिन जो फार्मर था उसने अपनी वाइफ से बोला कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। Then when our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion. उसको एक साथी की जरूरत होगी। कंपेनियन मीन्स होता है साथी या दोस्त। This pet will be our son's companion. ये जो हमारा पेट होगा वो हमारे बेटे का कंपेनियन होगा, साथी होगा। His wife liked the idea. उसकी जो वाइफ थी उसको ये आइडिया पसंद आया। One evening, the farmer brought him a tiny mongoose. Tiny मीन्स होता है छोटा, mongoose मतलब नेवला। कि एक शाम को क्या हुआ, जो फार्मर था उसने लेके आया। Brought मीन्स होता है लेके आना। With him
अपने साथ में क्या लेके आया, एक छोटा सा mongoose, नेवला। इट्स अ बेबी mongoose said his wife, जो उसकी वाइफ थी उसने बोला कि ये एक बेबी mongoose है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, ये एक बेबी mongoose है लेकिन कुछ ही टाइम में ये पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अ सन, ये हमारे जो बेटा है उसका दोस्त होगा। अभी ये फार्मर है हमारा, ये फार्मर की वाइफ है और ये इनका बेटा है छोटा सा, और ये हमारा बगल में है mongoose। और ये जो इनका बेटा है जिसमें लेटा हुआ है ये होता है पालना, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रैडल। क्रैडल अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था तो उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। क्रैडल मीन्स होता है पालना, जिसमें बच्चा लेटता है, छोटा बच्चा। अभी हम आते हैं बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रेव, दोनों बेबी और mongoose दोनों बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द mongoose had grown to its full size, 5 या 6 महीने में जो नेवला था वो अपने फुल साइज में आ गया। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल, एक लवली एनिमल, एक प्यारा सा जानवर, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज, चमकदार काली आंखें 2 थी उसके, और एक बुशी टेल, बुशी मीन्स होता है घनी, घनी टेल थी, पूंछ थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, जो फार्मर का बेबी था वो 6 महीने में, तो वो तो अभी भी बेबी ही था क्रेडल में। क्रेडल मीन्स होता है पालना, अभी हमने ऊपर देखा था। उसमें स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, वो सोता था, ऑल्टरनेटली मतलब होता है एक के बाद एक, पहले सोता था फिर रोता था फिर रोता था फिर सोता था, यही सब काम था उस बच्चे का। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन जो फार्मर की वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी, फेड मीन्स होता है उसको खाना देना, उसको खाना पीना जो भी देना होता है। उसने अपने बच्चे को खाना दिया एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप, रॉक्ड हिम टू स्लीप का मतलब होता है उसको थपकी के साथ या फिर लोरी सुना के जैसे भी उसको सुला दिया। इन हिज लिटिल क्रेडल, उसके जो छोटा सा क्रेडल था, पालना था, उसमें बच्चे को सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को उठा के सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से बोला आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई ऑन हिम का मतलब क्या होता है कि उसकी ओर नजर रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose, उसकी वाइफ ने बोला कि फ्रैंकली अगर मुझसे पूछो तो मैं अपने बच्चे को mongoose के साथ अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि नजर रखना। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, जो फार्मर था उसने बोला कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। द mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल, जो हमारा mongoose है वो एक दोस्ताना वाला एनिमल है, वो हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, ये उतना ही प्यारा है जितना हमारा बेबी प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स यू नो, पहले तुम्हें पता है कि वो हमारा जो बेबी है और जो mongoose है वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे, जो वाइफ थी वो बाजार चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, वाइफ बाजार चली गई और फार्मर के पास कुछ काम करने को नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, नॉट फार अवे का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, उसके पास में खेत थे। तो फार्मर ने सोचा कि मेरे पास कुछ काम तो है नहीं, तो मैं जाके अपने खेतों की ओर एक बार देख के आता हूँ। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स, वो रास्ते में कुछ अपने दोस्तों से मिल गया। ऑन द वे बैक, जो वापस आ रहा था वो तो अपने दोस्तों से मिल गया। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया आने में। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, जो फार्मर की वाइफ थी उसने शॉपिंग खत्म करी। एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज मतलब होता है किराने का सामान, वही घर का जो नॉर्मल सामान होता है वही होता है ग्रोसरीज। तो वाइफ जो थी किसान की वो बाहर गई, शॉपिंग किया उसने और वापस आ रही थी, उसकी बास्केट भरी हुई थी ग्रोसरी से। शी सॉ द mongoose, उसने mongoose को देखा सिटिंग आउटसाइड, अपने घर के बाहर बैठा हुआ। एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने देखा कि mongoose बाहर बैठा हुआ घर के, जैसे कि वो उसका वेट कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, उसको देखते ही ही रैन टू वेलकम हर, mongoose ने जैसे ही देखा कि उस बेबी की मदर आ रही हैं वो गया उसको वेलकम करने के लिए। एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी मतलब होता है कि जैसा कि हमेशा के लिए होता था, वो जब भी वो लोग बाहर जाते थे mongoose जाता होगा बाहर और उनको वेलकम करता होगा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड, जो फार्मर की वाइफ थी उसने mongoose की ओर एक बार देखा और चिल्लाई। ब्लड सी क्राइड,
जैसे मूवीज में देखते हैं खून खून चिल्लाते हैं लोग, वैसे ही उसने चिल्लाया कि खून। शी क्राइड। द फेस एंड द पॉज ऑफ द mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड। स्मीयर्ड मतलब होता है सने हुए। द फेस एंड पॉज, जो mongoose था, नेवला था, उसके जो चेहरा था, फेस था, और पॉज में जो होता है पंजे, उसके जो हाथ या पैर जो भी बोल लो आप, उसके जो पंजे थे और फेस था, दोनों खून से सने हुए थे। यू विकेड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, उसने क्या बोला कि यू विकेड एनिमल, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, उसने जो है परेशान होके चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज। ब्लाइंड विद रेज का मतलब होता है गुस्से में अंधा हो जाना। वो गुस्से में इतना अंधा हो गई कि वो चिल्लाई कि तुमने मेरे बेबी को मार दिया। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, विद ऑल हर स्ट्रेंथ मतलब होता है उसके पास जितनी भी ताकत थी, ब्रॉड डाउन, नीचे ले आई, द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। जो उसकी वाइफ थी उसने क्या किया, गुस्साई, उसके ऊपर चिल्लाई और अपनी जो ग्रोसरीज की बास्केट थी उसको उसने जितनी ताकत थी उसके ताकत से साथ नीचे फेंक दिया नेवले के ऊपर। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड mongoose एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, उसके ऊपर डाल दिया और अंदर गई अपने बच्चे के पास। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, जो बेबी था वो फास्ट अस्लीप का मतलब होता है कि बढ़िया आराम से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फ्लोर पे ही एक सांप था जो कि टॉर्न में होता है टूटा हुआ, फटा हुआ, तो कटा फटा हुआ सांप पड़ा हुआ था और वो ब्लीडिंग था। ब्लीडिंग मतलब होता है कि खून निकल रहा था उसके। इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश मतलब होता है तुरंत। सी रियलाइज्ड, उसने रियलाइज कर लिया, महसूस कर लिया। व्हाट हैड हैपेंड, उसने समझ लिया तुरंत कि क्या हुआ है। सी रैन आउट लुकिंग फॉर mongoose, वो बाहर गई ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है कि mongoose हमारा बच गया हो। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, उसने बोला अरे तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया, तुमने सांप को मार दिया और ये मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग दी mongoose, उसने mongoose को टच करके ये चीजें कही। हु ले डेड, ले मतलब लेटा हुआ पड़ा हुआ, डेड मतलब एंड स्टिल, स्टिल मतलब होता है बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत जो है लेटा हुआ था, मरा हुआ था। अनअवेयर मतलब होता है कि अनजान। ऑफ हर सॉबिंग, उसके रोना होना से वो अनजान था क्योंकि अब तो उसकी तो डेथ हो चुकी है, उसको क्या पता चलेगा कि कोई रो रहा है कि हंस रहा है, क्या कर रहा है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली, जो फार्मर की वाइफ थी उसने बहुत ही जल्दी में और नासमझी वाला एक स्टेप उठाया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, उसने काफी देर तक mongoose को देखा और रियलाइज करती रही कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने सुना कि बेबी उसका रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछते हुए, शी वेंट टू फीड हिम, उसको खाना देने चली गई। ये पंचतंत्र की एक कहानी है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? जो बेबी mongoose था उसको फार्मर घर में लेके क्यों आया? क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे का एक कंपेनियन हो, एक साथी हो, एक दोस्त हो, इसीलिए वो एक पेट एनिमल को लेके आए थे। Why didn't the farmer's wife went to leave the baby alone with the mongoose? जो फार्मर की वाइफ है वो mongoose के साथ में बेबी को छोड़ना क्यों नहीं चाहती थी? वो इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि उसको डर था कि कहीं ये mongoose मेरे बेबी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स? जो फार्मर था उसने अपनी वाइफ के डर जो थे, फियर थे, उस पर क्या कमेंट किया? उसने ये कमेंट किया कि हमारा जो बेबी है और जो mongoose है वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं। Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? जो फार्मर की वाइफ है उसने अपनी बास्केट उसके ऊपर क्यों गिरा दी या उससे क्यों मारा उसको? तो उसने इसलिए मारा क्योंकि उसको लगा कि जो mongoose है, नेवला है, उसने उनके बेटे को काट लिया या उसको नुकसान पहुंचा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन? हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस? रिपेंट मीन्स होता है कि शोक मनाना, दुख मनाना या अपने किए पर पश्चाताप करना। तो क्या उसने जो जल्दी में एक एक्शन लिया उस पर वो पछताई और उसने अपने जो पछतावा था उसको कैसे दिखाया? तो वो बिल्कुल पछताई, वो बाहर आई, जब अपने बेबी को देख के बाहर आई और उसने देखा, काफी देर तक वो घूरती रही mongoose को और सोचती रही कि ये मैंने क्या कर दिया है।